Let's get into the word quickly. चलिए जल्दी से वचन में जाएंगे इस वक्त. You see, in our Christian journey, आप देखते हैं हमारे मसीही यात्रा में there is a side that is more critical than our physical eyes. और देखिए ऐसी एक दृष्टि, ऐसी एक नजर होती है जो हमारी भौतिक आंखों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. More than what our physical eyes can see. हमारी भौतिक आंखें जो देख सकती है उससे कहीं ज्यादा, More than what our physical eyes can perceive. It is called the spirit of understanding. और जितना ज्यादा हमारी भौतिक आंखों से हम समझा जा सकता है उससे कहीं ज्यादा आत्मिक आंखों के बारे में हम कह रहे हैं. The sight of our understanding. हमारी समझ की आंखें. Look at somebody and say, the sight of our understanding. किसी को देखकर कहें हमारी समझ की दृष्टि. It is this ability, listen very carefully, बड़े ध्यान से सुने इस वक्त. that will move you beyond the natural. यही वो क्षमता है जो आपको स्वाभाविक स्तर से आगे ले It जाएगा. will move you to comprehend spiritual truths which are hidden from the natural people. और यही वो क्षमता है जो आपको जो है जो स्वाभाविक लोगों से छिपी हुई जो आत्मिक सच्चाई है उसे पकड़ने में मदद करेंगी. This is what Paul wrote. He says, the natural man does not understand the things of the spirit. यही तो प्रेरित पौलुस ने लिखा कि एक सांसारिक यानी स्वाभाविक व्यक्ति जो होता है आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता. To him, to the natural man, these things are hidden. उस स्वाभाविक व्यक्ति के लिए ये चीजें छिपी हुई हैं. I want you to listen very carefully. और मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने. Today I believe that God is going to open this realm to you. और आज मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर इस आयाम को आपके लिए खोलने जा रहा है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. You will grasp divine possibilities. Notice I said possibilities. और देखिए आप दैवीय संभावनाओं को गौर करें. हमने कहा संभावनाओं को आप पकड़ने जा रहे हैं. And it will unlock और ये आपके लिए खोल देगी your potential as a child of God. परमेश्वर के संतान के रूप में जो आपकी क्षमता है उसे. Look at somebody और किसी को देखें and say, you are not working on your full potential as yet. अभी भी आप अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर रहे हैं. You know, I know many computer engineers. पासवान जी जानते हैं बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियरों को. So they take a machine वे मशीन लेते हैं and there is something called overclock. Anybody knows what I'm saying? और फिर उनके पास कुछ ओवरक्लॉक नाम का चीज होता है. They overclock the CPU so the machine runs faster. और सीपीयू पर ओवरक्लॉक ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि मशीन जो है और तेज रफ्तार पकड़ लेती है. I know mechanics. जानते हैं मैकेनिक्स. They can take a car और कार को लेते हैं and do some settings. और कुछ सेटिंग उसमें करेंगे. Same car. वही कार. But your car, which that mechanic is, your car will move faster. लेकिन आपकी कार Hello, anybody what I'm कुछ saying? किया Ah, there आपकी you कार go. तेज रफ्तार से दौड़ेगी. There is a potential that's hidden in you. और ऐसी क्षमता जो आप पे छिपी हुई है That when this sight of your understanding will open, कि जब ये समझ की दृष्टि आपके लिए खुल जाएगी you will explore new possibilities. Things which were there right in front of you, God will open it up for you. नई संभावना में आप चले जाएंगे. देखिए वे चीजें जो सिर्फ सीधे आपके सामने थी परमेश्वर उनके लिए आपको खोल देगा. Look at somebody and say, God is going to open your potential. किसी को देखकर कहें परमेश्वर आपकी क्षमताओं को खोलने जा रहा है. And the good news is this. और अच्छी खबर यह है Today, आज through communion, प्रभु भोज के जरिए the Lord is going to open this side of our understanding. प्रभु हमारी समझ की दृष्टि खोलने जा रहा है. You will move into, listen, today I'm telling you, today is a special day. We are on the first day of the last month. और Very देखिए, ironic. आज एक खास दिन है. आखिरी Of the year. महीना का पहला दिन है. The first of the last, you know. Ah, interesting. आखिरी का पहला. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने. Let's turn our Bibles to the book of Luke right now. चलिए अपने बाइबल में निकालें लूका रचित And I सुसमाचार. want everybody to open your Bibles, please. चाहते हैं सभी लोग अपना बाइबल खोलें. Luke chapter 24. लूका का 24वां अध्याय. Let's read verse 13 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 13वें वचन से. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. और देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था. And verse 14 says, और देखिए वचन 14 कहता है and they talked together. What did they talk? They did not roast the preacher. They did not roast the pastor. Look at somebody and say, pastor roast. After the service, pastor roast is a common dish people have. और सभा के बाद में देखिए उस पासबान को भूनना ये तो बहुत ही आसान बात हो जाती है. Some people have worship roast. They roast the worshippers. आराधकों को ऐसा भूनने लगते करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो गया, वो क्यों नहीं. अरे छोड़ रहे. But they talked together of all these things which had happened. In other words, they were talking about the crucifixion of Jesus. They were talking all that happened to Jesus.
और देखिए वचन में लिखा है वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे। दूसरे शब्दों में यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की क्रिया के बारे में बात कर रहे थे। जो कुछ यीशु के साथ हुआ था उस पर वे चर्चा कर रहे थे। Look further now. Go to verse चलिए आगे 15. Now, so it was, while they spoke, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with him. Write this down. 15 वचन, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु खुद पास आकर उनके साथ हो लिया। Your speech attracts or detracts the presence of God. देखिए आपकी Oh, you didn't understand. You didn't का understand. मुद्दा जो है या तो परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी ओर आकर्षित करेगी या तो आपकी ओर से उसकी उपस्थिति को दूर करेगी। How do you speak? कैसे आप बोलते हैं? What is the content of your speech? आपकी बातचीत का विषय और मुद्दा क्या होता है? I told you earlier, is it pastor roast? Is it Christian roast? जैसे पहले बताया था कि एक पासवान को भुना जाना या मसीह को भुना जाना। वो ऐसा है, वो चोर है, ये अच्छा है, वो थोड़ा अच्छा है। Your speech आपकी बातचीत या तो प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करेगी या तो उसे दूर भगाएगी। Many people they are praying shaka ba 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 and all they get is dabba dabba dabba. और देखिए बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करते शकारा बाबा बाबा और उन्हें सिर्फ डब्बा डब्बा ही मिलता है। बोले यार मैं इतना प्रार्थना करता हूं कुछ होता क्यों नहीं है? It is because of your speech. और ये आपकी बातचीत की वजह से है। You're doing the right things, you're checking the right boxes. और देखिए आप सही चीजें कर रहे हैं, आप चेक बॉक्सेस में आप चेक कर रहे हैं। प्रार्थना किया, उपवास किया, दशांश दिया। अरे काम होता क्यों नहीं है? तेरा पिटारा बंद होना चाहिए। Are you getting me what I'm saying? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Yeah, that's the point. और यही तो मुद्दा है। While they spoke and they reasoned, Jesus, oh my goodness. और जब वे आपस में Not बातचीत apostles, Jesus himself drew near and went with them. Not only drew near, उनके साथ यीशु मसीह चले। जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ बात करते है? जा रहे तो देखो यीशु क्या बात है? उनके पास आकर से पास ही नहीं आया, उनके साथ हो लिया। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ चले? सर, आपके मुंह को संभालना। Be very careful what you speak. जो आप बोलते हैं ना इसमें बहुत ही सावधान रहिएगा। Of whom you speak. What is the content of your speech? किससे आप बातचीत कर रहे हैं? आपके बातचीत का विषय और मुद्दा क्या है? I was talking to a content writer and he says, content is king. And I said, that's right. Our king is our content. Oh, you didn't get that one. Never mind. Some people will, क्या बोला? Content is king. Yes, indeed. For us, our king is the content. जी हाँ, कंटेंट राजा, लेकिन हमारे लिए हमारा राजा ही कंटेंट है। And then something happened. और फिर कुछ होता है। Can we go further, please? चलिए आगे बढ़ेंगे। But their eyes were restrained. Their eyes were restrained so that they did not know him. मगर उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। Notice, गौर करें, they were talking to Jesus. वे यीशु से बातचीत They कर रहे were हैं, walking with यीशु के Jesus. साथ चल भी रहे हैं, They were talking to Jesus. वे यीशु से बातचीत कर They रहे हैं, were walking with वे यीशु Jesus. के साथ चल रहे हैं, But their eyes were restrained. There was something that was keeping them from fully knowing him. There was a dimension that was hidden. लेकिन उनकी आंखें बंद थी। देखिए कुछ तो ऐसी चीज थी जो यीशु को पूरी तरह से जानने में उन्हें रोक रही थी। ऐसा एक आयाम जो उनकी आंखों से छिपा हुआ था। ऐसा एक आयाम जो उनकी आंखों से छुपा हुआ था. They did not know him. वे उसे नहीं पहचान सके। Are you with me? आप समझ रहे हैं? Is there a realm where you talk to Jesus, you walk with Jesus, but you still don't know him? क्या ऐसा भी आयाम है? देखिए ऐसा भी आयाम जहां पर आप यीशु से बातचीत करते हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं पहचान Is पाते। it possible, Pastor? पासवान जी क्या ये संभव है? Yes. जी हाँ, There are levels in God. परमेश्वर में ऐसे आयाम है, स्तर हैं। There's an ankle level, और देखिए टखने का स्तर है, knee level, फिर उसके बाद घुटने का स्तर आता है, the waist level, फिर कमर का स्तर आता है, and then there is a surrender level. फिर उसके बाद समर्पण होने का स्तर आता है। Where you don't decide where you go, the river decides where you go. जहां पर आप फैसला नहीं लेते कि कहां आपको जाना है, लेकिन नदी खुद फैसला लेती है कहां का आपको पहुंचाएगी। बोले मुझे उधर जाना है, नदी बोलते नहीं बेटा। कितना सुन रहे हैं? आज तक तू प्रभु के साथ चला, बोले नहीं मैं प्रभु तेरे साथ चलता हूं, लेकिन मैं मेरी मर्जी करूंगा। कर ले। Ankle level,
टखने का स्तर, knee level, घुटने का स्तर, it's waist level, फिर कमर का स्तर, and there is a all-out surrender level. फिर उसके बाद पूरा समर्पण होने का स्तर. Is this making sense to you? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? Oh, Jesus. Some of you all, you signed up for the English class, you came in the physics class. अरे मैं तो यार फिजिक्स क्लास में कैसे घुस गया? So they did not know him. तो वैसे नहीं जान सके. And then you go further. फिर आगे बात बढ़ती है. Verse 17, please give me verse 17वां 17. वचन. Now he said to them, what kind of conversation? Now he wants to check. Jesus always tests you. Look at somebody and say, a good teacher does not give you a test so that he can show you your faults. He gives you a test to pull you higher. और देखिए अच्छा टीचर जो है आपको परीक्षा इसलिए नहीं देखता है ताकि आपकी गलतियां खामियों का पता लगा सके. नहीं, इसलिए वो परीक्षा देता है ताकि आपको ऊंचे स्तर पर पहुंचा सके. What kind of conversation is this that you are having with one another as you walk and are sad? देखिए वचन में लिखा है यीशु ने उससे पूछा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो और वे उदास से खड़े रह गए. Can I tell you something? क्या आप बता सकते हैं? They were talking to Jesus. वे यीशु से बातचीत They कर were रहे walking with Jesus. हैं. वे यीशु के साथ चल भी रहे And they were still sad. और फिर भी वे उदास हैं. क्या यार? They were sad. वे उदास हैं. Some are smiling. कुछ लोग You're getting the point. आपको समझ में आ रहा है. You know, many people hear, a Christian must never be sad. That's a lie. A Christian can be sad. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं मसीह लोगों को जो है उदास नहीं होना चाहिए. वो एक झूठ It's है. a way of life. ये जीवन का ही तो But एक there's a तरीका है. good news. There's a dimension now. लेकिन देखिए एक अच्छी खबर ऐसे Give me आयाम verse भी है. 18, sir. Then one whose name was Cleopas answered and said to him, are you the only stranger in Jerusalem? Do you not know the things that have happened there in these days? 18वां वचन. Now, यह सुनकर उनमें this was से a bold guy. No? क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या-क्या हुआ है. Verse 19. And he said to them, what things? Look at this. उसने उससे पूछा कौन सी बातें. I love Jesus. Said to him, the things concerning Jesus in Nazareth, who was a prophet, mighty was. They've already buried him, okay? Was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. देखिए Their मैंने- revelation was only prophet. उनका प्रकाशन सिर्फ यह था कि वो भविष्यवक्ता था. Some of you know Jesus as a healer. कुछ यीशु को जानते हैं चंगाई दाता के रूप में. My healer, मेरा चंगाई दाता, my deliverer, मेरा छुटकारा देने my वाला, provider. मेरा पूर्ति करने वाला. And your revelation is limited to that. और आपका प्रकाशन वहीं तक रुका हुआ है. Your revelation is limited to a provider, to a healer, to a deliverer. That's it. If God gives me this, praise the Lord. और देखिए आपका प्रकाशन सिर्फ इतना ही है कि वो आपका चंगाई दाता है, वो छुटकारा देता है, वो चीजों का इंतजाम करता है. अगर परमेश्वर मेरे लिए मुझे चंगाई देगा बस इतना ही. If you give me a fish sandwich, you are the best. अगर तू मुझे मछली का फिश सैंडविच देगा तो तू सर्वश्रेष्ठ है. Jesus gave them fish sandwiches. Come और on. यीशु ने उनको फिश यानी मछली का सैंडविच दिया. Everybody's mouth is watering now. सभी के मुंह में Tuna पानी आ- sandwich. Yeah. Come on now. Tuna sandwich by the Sea of Galilee. You can write a song. By the Sea of Galilee. You know? Don't go there now. खैर वहीं नहीं जाएंगे. Indeed, and the word before God and all. Give me verse 20. अब 20वें वचन में देखें. And how the chief priests and our rulers, read the word, delivered him to be condemned to death and crucified him. 20वां वचन. और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उसे क्रूस पर चढ़वाया. I want you to read this verse purposely because I want you to understand. और चाहते थे जानबूझकर इस बात को कि आप पढ़ें ताकि आप समझ सकें. I want you to understand the context that how these people, they are walking with Jesus, they are talking with Jesus, they don't know him, they are sad. Now jump to verse 30, please. अब देखिए चाहते हैं कि आप समझें कि ये लोग यीशु से बात कर रहे थे, यीशु के साथ चल रहे थे, यीशु को नहीं पहचान रहे थे और ये एकदम उदास बैठे हुए थे. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took the bread, blessed and broke it and gave it to them. 30वां वचन. जब वह उनके साथ मेज पर भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लिया, धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा. रोटी लिया, उसे ब्लेस किया, उसे तोड़ दिया और उनको दिया. Now read that. Verse 31. Then their eyes were opened. 31वां वचन. तब उनकी आंखें खुल गईं.
And they knew him. और उन्होंने उसे पहचान लिया, And they knew him. और उन्होंने उसे पहचान The लिया, moment they knew him, he vanished from their sights. और जिस पल उन्होंने उसे पहचान लिया, यीशु उनकी आंखों से छिप गया, उछल हो गया। Something in their spirit, it opened up. कुछ तो उनकी आत्मा में खुल गया। मेरा नाम माइकल है, मेरा नाम ये है। अरे तेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन जब तेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो यीशु मसीह को नए रीति से जानेगा। कोई लोग कहते ना, मैं 25 साल से मसीह हूं। ये लोग भी मसीह लोग थे। मैं चर्च में पैदा हुआ था। कोई फ्लाइट में पैदा होता है, उनको फ्री टिकट मिलती है ना? नहीं, कम ऑन ना। ये भाई साहब चर्च में पैदा हुए थे, फिर भी आंखें नहीं खुली। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। Then their eyes were opened. What is that thing? What is that event that made their eyes to open? तब उनकी आंखें खुल गई। क्या चीज था, क्या वाकया था जिससे कि उनकी आंखें खुल गई? It was the breaking of bread. यह प्रभु की भोज यानी रोटी को तोड़ना था। It was not a physical unveiling. It was a spiritual. ऐसे curtains खुल गए। और देखिए यह कोई देखिए भौतिक अनावरण यानी परत नहीं था, लेकिन ये आत्मिक परत था। कुछ Communion became the divine catalyst for revelation. और देखिए वो प्रभु भोज ही जो है उस प्रकाशन के लिए एक दैवीय माध्यम बन गया। They now knew the presence of Jesus in a new and a better way. अब उन्होंने यीशु की उपस्थिति को एक नए और बेहतर तरीके से पहचान लिया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, I'm not saying you don't know Jesus. ऐसा नहीं कह रहे कि आप यीशु को नहीं जानते। You know about him, you know his mother, you know his friends. और देखिए आप उसके बारे में जानते, आप उसकी माँ के बारे में जानते, आप उसके दोस्तों के बारे में जानते। But there is a place लेकिन ऐसा एक स्थान है where you enter into communion जहां पर आप प्रभु भोज के जरिए उसमें कदम रखते हैं and your spiritual eyes will open to know him in a much better way. और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी कि आप उसे और बेहतर तरीके से जान सकें। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त? This is the thing. ये है वो चीज। Pastor, पासवान जी, can I receive this spiritual understanding? Yes. क्या मैं ये आत्मिक समझ को ग्रहण कर सकता हूं? जी हाँ। Come on, are you getting me आप this? समझ रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, sir. कह रहे हैं आपसे। Let me go take you deeper now. चलिए और गहराई में जाते हैं। Go with me to the book of Genesis 13, please. चले जाएंगे इस समय उत्पत्ति के 13वें अध्याय में। Now God took Abram, देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को लिया, Papa Abraham. पापा अब्राहम को। Now Lot has gone away from him. अब देखिए लूत अब्राहम से अलग हो गया था। Now God is speaking to Abram. अब परमेश्वर अब्राहम से बोल रहे हैं। Can I speak to you? Something? आपसे बोल सकते हैं इस वक्त? God will not speak to you until there is a separation. और देखिए जब तक आपकी जिंदगी में देखिए अलगाव नहीं होता तब तक परमेश्वर आपसे बोलेगा नहीं। Oh. Lord, speak to me. प्रभु से बात कर। Until there is a Lot in your life, God will not speak. जब तक आपकी जिंदगी में लूत हो परमेश्वर बोलेगा नहीं। Until you separate yourself from the world will not become clear to you. और जब तक आप अपने आप को संसार से अलग नहीं करते वचन आपके लिए साफ और स्पष्ट नहीं बनेगा। How many are getting me? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? Separation. अलग होना। And the Lord said to Abraham, after Lot had separated, everyone said Lot had separated. जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके बाद अब्राहम से प्रभु ने बात किया। Some of your friends have to go. आप में से कुछ के दोस्त जाने हैं, Sheila has to go. शीला को जाना है। Don't ask me who's Sheila. अब ये मत पूछना शीला कौन है। Sheila, okay. After Lot had separated from him, lift up your eyes. अपनी आंख उठा। Now many people think Abraham did like this. और देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि अब्राहम ने ऐसा किया। Look at me. देखिए यहाँ Lift up your eyes. अपनी आंख उठा। No. नहीं नहीं नहीं। Lift up your eyes and look from the place. Do you know he was on the place, on a mountain? और आप जानते हैं वो एक स्थान पे था, एक पहाड़ पर था। And look from the place where you are northward, southward, eastward and westward. परमेश्वर से कह रहा है आंख उठाकर Look at जिस स्थान Abraham पर तू now. है वहां से उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, Northward. पश्चिम की ओर, चारों ओर दृष्टि कर। Northward. उत्तर, North ऐसा रहता है ना? Northward, उत्तर की ओर, southward, दक्षिण की ओर। eastward. Abraham was not doing this. अब्राहम ऐसा नहीं कर रहा था। तुम देखो तो कितना देख सकते हो? He was showing him the promised land.
परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा की जमीन, प्रतिज्ञा का देश दिखा रहा था। सर आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं. He was outside the promised land वो प्रतिज्ञा के देश से बाहर था and he's showing him the nation of Israel. और परमेश्वर उसे इजराइल राष्ट्र दिखा रहा था। Israel is not 1 acre, 2 acre, 3 acres, 4 acres, 5 acres. It is a nation. और इजराइल कोई 1 एकड़, 2, 3, 4, 5 एकड़ जैसा नहीं था, वो एक राष्ट्र था। From the mountain. और उस पहाड़ से, I have been on the mountain. पहाड़ पे गए हैं पास में। How many of you been with me on the mountain? कितने उनके साथ आए हैं वहां? Oh, hey, raise your hand. How many been with me to Israel? कितने उनके साथ इजराइल गए हैं? I've taken you on the mountain. Huh? Very good. From there, वहां very से, good. From there you cannot see fully. वहां से आप पूरी तरह से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते अरे बाबा नहीं देख सकते. Then what is those eyes that Abraham saw with? तो कौन सी वो दृष्टि या नजर थी जिससे अब्राहम ने देखा? हम लोग रहते तो बोलते देख सकता, हाँ देख सकता ना. प्रभु बोल रहा ना देख सकता, हाँ देख सकता. क्या देख सकता है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. Verse 15. 15 वचन। For all the land, everyone say all the land. All the land which you see. Which you see. That means the extent of his occupation, the extent that Abraham would receive was only till the point he saw. Oh. और देखिए यहां पर मामला यह है कि जितनी मात्रा में अब्राहम देख सकता था, उतनी ही मात्रा में उस जमीन को अपने कब्जे में ले सकता था, हासिल कर सकता था। जब मैं छोटा था तो एक माँ ने मुझे स्टोरी बोली थी. एक बहुत लालची आदमी था. सुन रहे हो ना? मेरी माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी बेचारी, लेकिन हम लोग दोनों भाइयों को खाना नहीं खाते थे हम लोग, तो हम लोग को इधर उधर का स्टोरी बोलती थी. तो एक लालची आदमी था, तो वो उसको एक बड़े राजा ने बोला जितना तो चल सकता है उतनी तेरी जमीन. कितने स्टोरी सुने हैं? बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग. लेकिन सैड एंडिंग ये है कि आदमी चलता है चलता है चलता है, बोलते जहां तक तेरे पैर जा सकते हैं उतनी तेरी जमीन होगी, और वो भागता है, आदमी मर जाता है, फिर उसको 2 गज जमीन मिलती है गाड़ने के लिए. अरे आपको स्टोरी नहीं मालूम है? Yeah, it's a beautiful story. I love stories. I love stories. Now the thing is, देखिए मामला ये है, जहां तक वो चल पाता था वहां तक उसकी जमीन है और उसको वापस भी आना है. तो खुदा कह रहा है for all the land which you see, जहां तक तू देख सकता है, अगर वो चीज तू नहीं देख सकता है तो वो तेरी नहीं होगी. Now you understood? अब आपको समझ में आया? Oh, now you understood. Now you understood. Now you समझे understood. आप। That means इसका मतलब if I can see to a point, अगर मैं उस मुद्दे तक देख सकता हूं then it is mine. तो वो मेरा है। If I can see it, अगर देख सकता हूं मैं I can have it. तो मैं पा सकता हूं। Elijah said, if you can see it, you can have it. Hey! एलिया ने कहा अगर तुम देख सकते हो तुम पा लोगे। Jesus, you didn't get me what I'm trying to नहीं समझे इस say. समय। You still did not get me. अभी भी आप There नहीं is समझे। something about seeing in the तुमको देखने spirit. के बारे में है। Elisha said, I want a double portion. और एलिया ने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। Many years I did not understand this. कई साल तक समझे नहीं थे इस बात को। And Elijah said to Elisha, और एलिया ने एलीशा से if कहा you can see me, अगर तुम मुझे देख सको then you will have it, sir. तो तुम पा लोगे। And Elisha says, और एलीशा कहता है I will see it. मैं देखूंगा। He saw him going in the chariot. और उसने उसे देखा रथों पर सवार होकर Some people call it UFO. No, sir. It's an angelic thing. I'll tell you later someday. Some people, now, don't write to me now, preach on it, okay? For all the land which you see, everyone say, I have to see it. सब लोग कहे मुझे देखने की No, जरूरत no, है। no, say it loudly. मुझे देखना जरूरी है. मुझे देखना जरूरी है। तभी मैं हासिल कर सकता हूं. I will give it to you and your descendants forever. और तुम्हें और तुम्हारे वंश को हमेशा के लिए। I give you the example of Elijah, Elisha. और आपको एलिया और एलीशा का उदाहरण दिए। God opened Abraham's eyes परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोली and he saw. और उसे देखा। He saw. उसे देखा। He saw Beersheba. उसने बेर्शेबा He saw Jerusalem. यरूशलेम को देखा। He saw. He said, Abraham, now you've seen it, now. Now I give you this land. फिर अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तुमने देख लिया ना मैं तुम्हें देश दे देता हूं। Listen to this. In Christ, मसीह में you have an inheritance. आपके पास एक विरासत है। नहीं समझे सर? You see,
Jesus died for you, आप देखते हैं यीशु आपके लिए मरा, not for drama. He died so that he could hand over something to you. सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं, वो आपके लिए मरा ताकि आपको वो कुछ सौंप सके। Many years I did not understand कई this, साल तक समझ नहीं पाए थे इस बात को, but now I do. लेकिन अब समझते हैं। In Christ there is an inheritance that when you were born again, Christ released an inheritance, एक विरासत रिलीज किया। बेटा तू इधर जाएगा, तू उधर जाएगा, तू यूएस जाएगा, तू कनाडा जाएगा, तू ये तेरी विरासत है। बाजू वाले को बोल तेरी विरासत है। Listen carefully. सुनिए ध्यान से, You will operate in this gift. आप इस वरदान में काम करेंगे। तेरे पूरी जिंदगी में इतना पैसा बोलेगा सब क्या आंख खुलती है। वो पीछे लोग बैठे था अब्राहम जैसा, लिफ्ट अप योर आईज से उसके में मुंह खोल गया, देखा। Are you listening now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Inheritance. विरासत, There is an inheritance. ऐसी एक विरासत है, It does not come by your strength. ये आपकी ताकत से नहीं आता। तो जो बच्चे होंगे वो बच्चे, अभी तू खाली बच्चा देख सकता है, लेकिन अगर तू जानता तेरे बच्चे का बच्चा एक बड़ा लीडर बनने वाला है, It's an inheritance. ये एक विरासत है। You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, there is a knowing inside of you. आपके अंदर से ऐसे जानने की क्रिया होती है। There is a knowing inside of you. Look at somebody and say, there is a knowing. किसी को और देख कर कहे जानने की Look क्रिया, at somebody and say, inheritance. विरासत, Come on, everybody say कहे inheritance. विरासत। See, when I was born, I never knew that I would be on television because I never knew. जब इनका जन्म होता, देखिए कभी पहले कभी जाने नहीं थे कि Look टेलीविजन at पर आएंगे। television. My father didn't come before a camera. इनके पिताजी कभी कैमरे के सामने नहीं आए थे। बेचारे हम लोग छोटे थे तो हम लोग जाते थे शादी में, तो फोटो के लिए हम लोग जबरदस्ती अंदर जाते थे। हंसो हंसो। Today we don't want to come in the photograph. They push us inside to get the photograph. देखिए आज नहीं भी आना चाहे तो भी वो लोग जबरदस्ती खींच लेते हैं। It's an inheritance. देखिए ये एक विरासत है। That comes, sir, listen to me. What if you knew that you would be a person who would handle 150 chain of restaurants? और क्या होगा अगर आपको पता चले आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सैकड़ों जो रेस्टोरेंट के आप संभाल सकेंगे। What if you'd be a man, if God showed you that you would be handling 300 crores? What if you'd be a man? You would say that your life will impact thousands of people. क्या होगा अगर आप ऐसे व्यक्ति बने जो आपकी जिंदगी हजारों लोगों पर प्रभाव डाले। You see, some of you are blind. देखिए आप इसको अंधे हैं। You are talking to Jesus, walking with Jesus, but there is a dimension that is not open to you. आप यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा आयाम जो आपके लिए खुला हुआ नहीं है। God said to Abraham, lift up your eyes. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपनी आंखें उठा। God opened my eyes परमेश्वर मेरी आंखें खोल, to see, to understand. देखने के लिए, समझने के लिए। Sir, जनाब, can I prophesy to you? क्या पर भविष्यवाणी कर सकते You हैं? are not poor. आप गरीब नहीं हैं। You will be lending to the very people who gave to you. जिन्होंने आपको उधार दिया था, आप उन्हीं को उधार देने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Your life will touch thousands of people. आपकी जिंदगी हजारों लोगों की In the छूने जा रही है। mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। Lift your hands and say, I receive in Jesus' अपने हाथ name. लगा के मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। That is the power of an और inheritance. विरासत में ऐसी सामर्थ है। That's why Paul prayed for the Ephesian church. और इसलिए फिर पौलुस एफिसी कलीसिया That के लिए you दुआ may करता है, know your inheritance in Christ. ताकि मसीह में जो तुम्हारी विरासत है तुम उसे जान सको। बोले मैं विरासत, रिक्शा का भाड़ा नहीं मेरे पास, विरासत। हाँ बोले हाँ विरासत, मेरा इतना लोन है, विरासत। अंधा आदमी नहीं जानता उसके पास क्या है। वो अपने हीरे को ही बेच देते, बोले ले भाई ये पत्थर में जा मिला था, बोले अंधे क्या करा, पत्थर बेचो मत। Esau sold his inheritance. एसाव ने अपने विरासत को बेच दिया था। Judas sold his inheritance. यहूदा इस्करियोती ने अपनी विरासत बेच दिया था। अगर जूदस जानता था कि ये जिसे मैं बेच रहा हूं ये मेरा प्रभु है, तो शायद कभी नहीं बेचता उसे। कितने लोगों ने अपनी विरासत बेच दी, क्यों पता है? क्योंकि वो अंधे हैं। Now you getting me? अब आपको समझ में आ रहा है?
If their eyes would open, अगर उनकी आंखें खुल जाए, the prodigal son, उड़ाऊ बेटा बोले यार मैंने क्या किया? बोले मेरे बाप को जिंदे में मार दिया उसको, उसने विरासत बेच दी उसने. But one day, लेकिन एक the दिन Bible says, बाइबल कहती है he came to himself. अपने होश में आया वो. अरे मैं क्या कर रहा हूं यार, ये डुक्कर लोग के साथ फेलोशिप कर रहा हूं. प्रिंस ऑफ द डुक्कर. डुक्करों का राजकुमार, I'm fellowshipping with the dukkar. डुक्करों के साथ मैं संगति कर रहा हूं. I was fellowshipping with the princess. Hello, are you listening right now? चोर तो छोड़ो, डुक्कर. And his eyes open. और उसकी आंखें खुल जाती हैं. Then he says, I'm going back to my father. फिर वो कहता मैं अपने पिता के पास वापस लौट रहा हूं. Sir, I pray today that you understand this teaching. प्रार्थना करते हैं कि आज आप इस शिक्षण को समझ जाएं. I pray that you understand this word. और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को आप समझ And जाएं. as you take the communion, और जैसे प्रभु भोज लेते हैं, something will open inside of you. कुछ तो आपके अंदर खुल जाएगा. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे. God will speak to you in dreams and visions today. परमेश्वर आपसे स्वप्न दर्शन के जरिए बात करेगा. In the name of यीशु Jesus. के नाम में. This will happen in the mighty name of Jesus. और ये सब होगा यीशु के सामर्थी नाम में. Lift your hands and say, Lord, open my eyes. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरी आंखें खोल दे. If you read Genesis 16, Hagar हाजिरा was thrown out of Abraham's house because she was the second wife of Abraham. हाजिरा को जो है अब्राम के घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वो दूसरी पत्नी थी अब्राम की. Sarah told her, get out. सारा ने उसका निकल जाओ. And now Hagar is gone with Ishmael. और फिर उसके बाद हाजिरा अपने बेटे इश्माइल को लेकर जाती है. And she's crying और वो वहां रो रही होती है because now Ishmael is about to die. क्योंकि इश्माइल मरने वाला था. In the desert, no water. रेगिस्तान में कोई पानी नहीं. But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है that God opened her eyes. परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली And she saw a well. और उसने कुआं देखा. She saw a well. उसे कुआं देखा. And that well और वो कुआं was not ordinary well. और वो कुआं कोई महज साधारण सा कुआं नहीं था. It was a spiritual well. वो एक आत्मिक कुआं था. Could it be possible संभावना है कि ऐसे ऐसे चीज तुम्हारे सामने हैं, वो लोग सामने हैं, तेरा लाइफ पार्टनर, ये वो सब चीजें सामने हैं, लेकिन शैतान ने तुम्हें ऐसा पट्टी डाल दिया है कि तुमको दिखाई नहीं देता है, और खुदा जब वो पट्टी को हटाएगा वो सारी चीज तुम्हारे सामने दिखाई देंगी. How many understand this? किधर समझ इसे. Sister, I want you to understand this. बहन चाहते कि आप इस बात को समझ जाएं. Many people, they're walking in fear देखिए बहुत सारे लोग डर में चलते हैं because all they see is darkness. क्योंकि उन्हें सिर्फ अंधकार ही दिखता है. All they see is darkness. भूत है. उन्हें बस अंधकार ही दिखता है और वो भूत से डरते रहते हैं. ऐसा अरे डार्कनेस फक्त 1 फीट है. 1 फीट जब बाहेर जा, प्रकाशच प्रकाश है. अंधकार सिर्फ 1 फीट तक ही है. 1 फीट से बाहर जाओ उजाला प्रकाश ही प्रकाश है. खाली 1 फीट में अंधेरा है. भूत है. I mean, भूत है. But beyond 1 feet there is light. लेकिन 1 फीट के आगे जो है उजाला है. If that can lift up from you, you will walk in light. आपको उठा सकता है और आप उजाले में चलेंगे. Go to 2 Corinthians, hurry up. Many believers, they are bound, what I want to bring out is, many believers, they are bound with limitations. देखिए बहुत सारे विश्वासी लोग जो सीमाओं से बंधे हुए हैं. Fear. डर. Fear is a limitation. डर भी एक सीमा है. What if it does not happen? क्या होगा अगर ये काम नहीं हुआ तो. You see, church, आप देखते कलीसिया, when Jesus told the disciples, जब यीशु ने चेलों से कहा था let us go to the other side, चलो हम दूसरी ओर जाते हैं. in the spirit, आत्मा में Jesus had already reached the other side. यीशु पहले ही दूसरी ओर पहुंच चुके थे. But now the disciples didn't know. लेकिन अब चेलों को जानना So था. the storm came in the middle. और लेकिन उसके बीच में देखिए तूफान आया. Interval में storm आया. Hello. बोले प्रभु, और वे चिल्लाने लगे प्रभु तूने तो प्रोफेसी दी थी, तूने भविष्यवाणी किया था हम लोग अदर साइड जाएंगे, वीजा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कि हम दूसरी ओर जाएंगे वहां भी वीजा आएगा सब कुछ आएगा स्टैंप लगेगा. स्टैंप लगेगा. अरे बीच में तूफान अंकल कहां से आया? प्रभु बोलते रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी देखा है, तुम लोग अदर साइड पहुंच गए भाई लोग. How could Jesus sleep in the storm? और कैसे उस तूफान में भी यीशु सो सके. Because he had spiritual understanding. He had already seen. क्योंकि उसके पास आत्मिक समझ थी. वो पहले ही उसने देख लिया था. Okay, this is too deep for some people. Let me just bring it down to New Testament now. कुछ लोगों के लिए बहुत ही गहरा Paul है. is traveling in the storm with the people. और देखिए पौलुस भी Hey, देखिए do you तूफान में read घिरा the हुआ था Bible? लोगों के साथ. I have to put so much of water for you.
आपके लिए कितना पानी डालना पड़ I रहा है। wish I had a congregation that they would say, preach it, pastor, and we could go like that. Listen to this. सुनिए इसे। Paul is traveling with the people. और फिर पौलुस जो है यात्रा कर रहे थे On लोगों the के साथ। ship, he's a prisoner. और उस जहाज पर वो एक कैदी था। And there is a storm, book of Acts. और फिर तो कामों की पुस्तक महा तूफान आता है And everybody's saying, और सभी लोग कह रहे हैं we are going to die. हम मरने जा रहे हैं। Paul says, relax, फिर पौलुस का आराम से रुको। chill. What chill? Not क्या आराम से? क्या chill करते तू? He said, you don't know. He says, last night, उसने कहा तुम नहीं जानते पिछली रात an angel of the Lord stood प्रभु का स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हुआ and he told me, और उसने मुझसे कहा all of you तुम सब लोग are going to make it. तुम आगे जा रहे हो। Spiritual understanding will bring you, will show you beyond the storm, will show you beyond the cloud, will show you beyond the darkness. Somebody receive it right now. समझ जो है देखिए आपको तूफान के परे, उस अंधकार के परे, उस बादल के परे आपको दिखाएगा। Today I decree and declare no storm will kill you. और आज ऐलान कर दे कोई तूफान आपको खत्म नहीं कर सकेगा। What will happen, Pastor? What will happen? Nostradamus. और क्या होगा पासवान जी? क्या होगा पासवान जी? I don't care what Nostradamus says. My Bible says, they that trust in the Lord shall never be hungry. Hallelujah. हमारा बाइबल कहता है कि जो प्रभु पे भरोसा करते They हैं, वो shall कभी walk. भूखे नहीं होंगे। Hallelujah. They shall rise. They shall not faint. Hallelujah. वे चलेंगे, वे उठेंगे, वो I बेहोश want to tell the church, don't listen to this और कलीसिया से कहना चाहते हैं Baba Vanga and Nostradamus. Baba Vanga said this. No, I want to address this. इस बात को- Now, अभी तुम लोग जो लोग बाबा वांगो को नहीं जानते ना, तुम लोग जाके गूगल मत करो, कौन रहे वो? बिलीवर्स लोग वही देखते हैं, देख ये देख वो देख, 666 आने वाला, 666 आने दिया, 666 आने दे यार। यीशु मसीह लोगों के साथ है। You need that understanding. आपको समझ की जरूरत है। Lift your hand and say, I receive this word. अपने हर जगह सोच को मैं ग्रहण करता हूँ। I receive, and if you have forwarded this, repent. Go on a fast and say, Lord, forgive me. अगर आप दूसरों को फॉरवर्ड किए हैं उस बात को, तो आजकल देखिए, पब्लिक पश्चाताप यही करें। पढ़ती है, नोस्ट्राडामस 25 में प्लेग आने वाला है, 25 में ये आने वाला है। ये नहीं बताया बाबा वांगा ने कि यीशु मसीह आने वाला है। सब बंद करो ये सब बकवास। How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, जो होने वाला होने दो। हम लोग पानी पे चलेंगे। बाबा वांगा, नोस्ट्राडामस और कौन कौन है? वो कोई नहीं, किसी ने मेरे को ट्रम्प का वीडियो दिया था, बोले ये एनिमल ने बॉल उठाया इसीलिए ट्रम्प जीता। बोले ये बॉल उठाने से ट्रम्प कैसा जीतेगा रे? No, that seal na picked up the ball, From so many days, the seal is taking up the ball. I said, see, now the seal will pick up the ball will be wrong. One fellow, he stopped his Instagram channel only because all his prophecy came wrong. Anybody knows what I'm talking about? समझ में आ रहा है? You people are in your well only. Jacob's well. Hello? Yes. There are limitations. ऐसी सीमाएं हैं। I cannot do this. मैं ये नहीं कर सकता। मैं स्टेज पे तो नहीं जाता, स्टेज पे जाएगा तो पूरा गीला हो जाऊंगा मैं। Limitations. सीमाएं। अगर खुदा ने तुम्हें बुलाया है, वो पर्दा हटना है आज। खुदा ने आपको बुलाया तो पर्दा हटना ही है। वो पर्दा हटेगा सर। बोले मेरे को लोगों के सामने बोला मेरी जबान पप मोसेस जैसी होती है। तेरी जबान आज छूटने वाली है। Limitations are going to be broken. Talk, prophesy to your neighbor. Limitations are going to be broken in the name of Jesus. पड़ोसियों भविष्य के सीमाएं टूटने जा रही I हैं। said सीमाएं टूटने जा रही prophesy. Limitations are broken over your life, over your family, in the name of हैं। Jesus. भविष्यवाणी करो कि सीमाएं आप पर से आपके परिवार पर से तोड़ी जा चुकी है यीशु के नाम में। बोले मार्केट ने कहा है कि 1 लाख के ऊपर में ना नहीं जाएगा। मार्केट अगर तू घाटे में तो कोई कमा रहा है। सब लोग घाटे में नहीं जाते, कोई तो कमाते रहता है। Limitations are being broken. सीमाएं इस समय तोड़ी जा रही है। Somebody say I receive. कोई लगा मैं ग्रहण कर रहा हूँ। One more limitation will be broken today. और एक सीमा तोड़ी जाएंगी। One more limitation will be broken. Are you ready right now? तैयार है इस वक्त? Lift your hands and say I receive this word right आपने now. हर रखा है मैं सोच को ग्रहण करता हूँ इस समय। 2 Corinthians 4:4. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 Whose minds the God of this age has blinded. जिनके मनों को इस
युग के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी कर दी है। Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. ऐसा पर्दा उनके दिमाग पर है। शायद वो पर्दा आपके पर भी है। जब यीशु मसीह ने उस अंधे को छुआ तो बोले क्या दिखता है? बोला दिखता है लेकिन सब कुछ उल्टा दिखता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? अरे क्या बात है, यीशु मसीह ने उल्टा दिखता है, बोले ये ले पावा, तो बोला अभी ठीक दिखता है। कोई लोग मसीह में हैं लेकिन फिर भी उनको ठीक से दिखा नहीं, सब उल्टा दिखता है। कोई आपको हेलो हेलो बोले तो बोलता उल्टा दिखता है। बोले इधर बैठे बोलेगा, बोले सर गाड़ी इधर लगा, अगले संडे से नहीं आऊंगा। सब उल्टा दिखता है उनको। सर भाई साहब थोड़ा इधर आएगा, ऐसा क्यों बोला तूने? यीशु मसीह ने उनको छुआ है लेकिन सब कुछ उल्टा दिखता है। आप लोग बहुत हंसोगे आज रात को। Such people also need that blindness to go. Somebody say I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस समय। How many of you blessed by today's teaching? कितने लोग आशीषित हुए आज के शिक्षण से? In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Give Jesus a shout of praise and say hallelujah. ताली की भेंट चढ़ाकर हालेलुया।